था? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, बीट, बीट, एंडोस्पर्मिक में कोकोनट मेज, कोकोनट, नॉन एंडोस्पर्मिक pea and beans, pea and beans. कैस्टर इज ऑल्सो एंडोस्पर्मिक. ओके, कैस्टर मेज ऑल आर एंडोस्पर्मिक. इसमें पी एंड बीन्स. ओके, इसके अलावा हमने सीड का आउटर कवरिंग देखा था, राइट? सीड के कवरिंग में वी हैव जस्ट सीन देयर आर टू लेयर्स प्रेजेंट. द आउटर वन इज कॉल्ड एज, outer layer of seed is called as testa, and the inner one is called as tegment, tegment. yes. भूलते जा रहे हो क्या सब? रिवीजन करते रहा करो, अदरवाइज सारा का सारा चीज भूल जाओगे. ओके, सो सीड का हमने आउटर लेयर देखा था, दैट इज द टेस्टा, एंड द इनर वन इज सेगमेंट. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स. पेरिस्पर्मिक में क्या परसिस्टेंट रहता है बच्चा लोग? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Nucellus, Yes, very good. And in this endospermic endosperm. and non-endospermic, Endosperm is not persistent. why? What is the reason? Completely consumed by the developing embryo. Yes. Okay, got it? Is it clear to everyone till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So as I have told you already in the last lecture कि हम लोग आज क्या स्टडी करेंगे? फ्रूट के लेयर्स पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लोग, मुझे आप लोग ये बताओ, फ्रूट किस चीज से डेवलप होता है? ओवरी इज डेवलपिंग टू Ovary. फ्रूट, करेक्ट? Yes. अब this is your embryo sac, this is your antipodal cells, two polar nuclei or the secondary nuclei, this is your synergids and this is your egg cell, right? ये आपका Yes. embryo sac. embryo sac के अगल बगल क्या था आपका? अगर आप anatropous ovule देखोगे, this is your nucellus, correct? ये आपका पूरा anatropous ovule था. Yes. किसके अंदर प्रेजेंट है? What this bag called as? जिसके अंदर आपका anatropous ovule प्रेजेंट है. ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ना आपका ओव्यूल. So your ovary is converted into a fruit, right? So यहाँ पे आपका जो ओवरी का वॉल है, that is going to be developed into a fruit का covering. Getting my point? This is all is your ovary, correct? So ovary का जो layer है यहाँ पे, this is going to be developed as a what? जैसे हमने seed coat देखा था ना, this is nothing but the fruit coat. फ्रूट के ऊपर भी छिलका रहता है कि नहीं रहता? Yes, ma'am. Okay, so this is your fruit coat that is converted into a, that is developed from the covering of your ovary. Okay, so fruit development वगैरह ये सब कैसा होता है स्टूडेंट? जैसे कि we have already done it. केमिकल पिस्टल इंटरैक्शन याद है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, जहाँ पे आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटरैक्ट होता है, राइट? सो ऑल दिस Yes. थिंग्स आर अ हार्मोनल प्रोसेस. हार्मोन्स पता है ना सबको? Yes, ma'am. Okay, so here the ovary wall develops into a fruit coat that is called as pericarp. That is called as pericarp. Okay, तो पहले आप लोग चलो अभी लिखो. लास्ट टाइम मैंने कुछ तो आप लोगों को हेडिंग दिलवा के छुड़वाया था, राइट? क्या हेडिंग दिए थे आप लोग लास्ट टाइम? Walls of fruit. ओके, वॉल्स ऑफ फ्रूट दिए हो ना, ठीक है, उसके नीचे लिखो. So generally your walls of fruit is divided into three types. Most outer covering, ये outer most covering लिख सकते हो आप. Layer भी लिख सकते हो, layer will be better. Outermost layer, middle layer, and this is innermost layer. Visible to everyone? Yes. Yes. Okay,
Now the outermost layer is called as pericarp. Carp means layer, peri means outer. What does it called as? Pericarp. So if anyone asks you, what do you mean by pericarp? What you will say? It is the outermost layer of what? Seed or fruit? Fruit. Okay. So pericarp is the outermost layer. Peri stands for outer, carp means layer. Okay. तो ये middle layer है. Middle से आपका क्या आता है? Meso. Mesocarp. Yes. So covering is carp. सबको समझा? Meso stands for middle. Carp means again layer. Got this? And the last one is Endo. innermost layer. Inner से आपका आ गया endo. And again for layer carp. So it is endocarp. ENDO, endo, CARP, carp. हेलो मैम, Yes, बच्चा बोलो. एपिकार्प भी होता है ना? वही पेरिकार्प. Epicarp and pericarp both are same thing. Epi also stands for the epi, means outer, and peri also stands for outer. Okay, so you can write it here pericarp or epicarp. It is fine. Okay. So now is this clear to everyone? Yes मैम. Okay. Now अभी बच्चा लोग कैसा होता है, ये जो आपका पेरिकार्प है ना, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. ओके, दैट इज द मोस्ट आउटर मोस्ट आपका जो कवरिंग है, ये दो टाइप का है. वन इज फ्लैशी. फ्लैशी मीन्स समझ रहे हो ना, कैसा बल्गी टाइप. ओके, एंड द अनदर वन इज ड्राई. ड्राई और फ्लैशी. दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? Yes So मैम. in case of fleshy बच्चा लोग, you can write the example of mango. मैंगो का जब आप देखते हो पेरिकार्प, तो पेरिकार्प निकालने के बाद अंदर जो आप खाते हो, the thing that you eat, that is very fleshy, right? Yes. Yes. And dry का आपका जो एग्जाम्पल है, that is your coconut. कोकोनट का लेयर कैसा होता है? It is very rough and tough, right? Yes. So pericarp Yes. is also is of two types. One is fleshy, example is mango, that you can visualize, and the another one is epicarp or pericarp is very dry, example is coconut. Done? इतना सबको समझ में आया? मैम Yes, मतलब ma'am. फ्लैशी में नरम फ्रूट्स आएंगे ना, मतलब देखा जाए Yes, तो. fleshy में it means स्टूडेंट्स लोग, आपका जो पेरिकार्प है ना, दैट इज वेरी सॉफ्ट. तो जैसे ही आप पेरिकार्प रिमूव करते हो, दैट इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर. जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, दे आर बल्जी फ्लैशी फ्रूट. तो सारे फ्लैशी फ्रूट्स किस में आ जाते हैं आपके? पेरिकार्प में भी दो टाइप है, तो फ्लैशी फ्रूट्स में ऐसे आ जाएंगे और ड्राई में ड्राई वाले. Okay. समझ में आया सबको? Yes. ओके, सो डन दिस एवरीवन. Yes मैम. Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोगों से ये क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट? ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस क्या है? ये बताया मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, ऑलरेडी हो चुका है, और इज इट न्यू फॉर यू? तो यस और नो, मालूम है आप लोगों को या नहीं? व्हाट इज द जनरल डिफरेंस बिटवीन दिस बेसिक डिफरेंस ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट? एनी आइडिया, एनी गेसेस? नो. ओके, सो लुक हियर. इन ट्रू फ्रूट, फ्रूट किस चीज से डेवलप होता है आपका? Ovary. Ovaries. यस. सो ट्रू फ्रूट मीन्स बच्चा लोग, जहां पे आपका ओनली ovary contributes for the formation of fruit. समझ में आया?
So true fruit means only the ovary contribute for the formation of fruit. मतलब जिस fruits में सिर्फ ovary से fruit बन रहा है, that fruits are called as true fruit. समझ में आया? Yes, ma'am. And the next one is false fruit. False fruits मतलब other parts than ovary contributes to the formation of fruit is called as false fruit. जैसे कि थैलेमस वगैरह हो गया. एप्पल के लास्ट टाइम देखे थे ना आप लोग 11th में, मैंने आपको पढ़ाया ना, वहां पे 11th का वो याद है आप लोगों को, थैलेमस कंट्रीब्यूशन फॉल्स फ्रूट फॉर्मेशन में टाइप्स ऑफ Yes. फ्रूट्स किए थे ना हम उसमें कितना सारा, Yes, ma'am. तो भूल गए इतना जल्दी आप लोग. सो फॉल्स फ्रूट में क्या होता है बच्चा लोग, अदर पार्ट्स देन द ओवरी, जिसमें से जैसे कि एक हमारा गया थैलेमस. ओके, थैलेमस पता है ना सबको. तो Yes, एप्पल अगर ma'am. आप देखोगे ना बच्चा लोग कट करके, तो ये जो बल्जी पार्ट होता है ना, अभी यहाँ पे तो आपका सीड्स आ गया छोटा छोटा, करेक्ट. तो ये जो बल्जी Yes. पार्ट जो आप खाते हो ना, Yes. दैट इज नथिंग बट द थैलेमस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. समझ में आया? So in false fruit, other parts than ovary contribute to the formation of fruit. आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. Thalamus contributes to the fruit formation. Example apple. अच्छा, अब एक और डिफरेंस. What do you mean by parthenocarpic fruit? The fruit which is formed without fertilization. Yes, the fruit that is formed without fertilization is called parthenocarpic fruit. Example is banana. Example is Banana. बनाना. चलो लिखो फटाफट, तीनों लिखो ऐसे. ट्रू, लेमन, ये सब लिख दो. ओके. So parthenocarpic fruit means the fruit that is formed without fertilization. Example banana. True fruit means only the fertilized ovary is contributes for the fruit formation. Example is watermelon or lemon, etc. False fruit means other parts than ovary contributes for the fruit formation. Example is in case of apple, thalamus contributes for the fruit formation. Is it clear to everyone? तीन के तीनों fruit का difference? Yes, ma'am. Okay. Done writing? Done everyone? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So now give the next heading, that is significance of seed and fruit formation. Significance of seed and fruit formation. Significance मतलब समझते हो बच्चा लोग? Importance. Yes, what are the importance? Purpose क्या है seed and fruit formation का? Okay, importance क्या है इनका, इनसे क्या क्या होता है? So is it done? सबका हो गया लिखकर? Should I rub it? Yes, ma'am. Yes. Okay. So next heading is
significance of seed and fruit formation. डन हेडिंग. चलो अभी उसमें पॉइंट वाइज लिखते जाओ. सो सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स बच्चा लोग. क्यों प्रेजेंट होता है? फॉर प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग. किसको करेगा नरिश वो? फ्रूट के अंदर Seed. क्या है? Seeds. यस. सो फर्स्ट पॉइंट लिखो. फ्रूट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड्स. डन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब फ्रूट्स किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जिसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन का भी काम करेगा फ्रूट. क्यों? सीड इज प्लेस्ड इनसाइड द फ्रूट. करेक्ट. सो फ्रूट अल्टीमेटली विल एक्ट एज द प्रोटेक्टिंग यूनिट फॉर सीड. सो सेकंड पॉइंट लिखो. fruits also perform the function of protection to the immature seeds. Protection to the immature seeds. IMMATURE protection to the immature seeds. Done. Yes or no? Done everyone? Yes, Yes. ma'am. Yes. Okay. So now you all tell me what is the importance of seed? Seed इतना important क्यों है? Germination होने के बाद we'll get a new plant from that. Yes. Is there any possibility that without the help of seed, without seed आप कोई नया plant grow कर सको? No. Yes or no? No, right? Yes. There is no possibility कि आप without seed कोई नया plant grow कर सको. So basically आपका seed यहाँ पे क्या कर रहा है? It is important propagating organ. Okay. That means it is an important unit of plant that is making sure कि आपको नया generation plants का मिल रहा है. Correct? समझ में आ रहा है? So next Yes. point लिखो. Seeds are act as seeds are act as very important propagating unit. Very important propagating समझ रहे हो ना? Propagate means germination. Okay, so seeds are act as very important propagating unit of plant for next generation. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Now next point. अब सीड एंड फ्रूट्स में बच्चा लोग ऐसा अलग अलग स्पेशल डिवाइस डेवलप होता है जिसके वजह से इट हेल्प फॉर देयर डिस्पर्सल समझते हो? दैट इज डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्पर्स हो रहा है जहाँ पे स्पीशीज जो है आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. अब उसमें से कुछ डिवाइसेस आप पहले मुझे बताओ फिर मैं आपको बताती हूँ. एनी आइडिया कौन से डिवाइसेस की बात हो रही है यहाँ पे? Birds. Birds are the devices. They are the pollinating agents that is helping
द डिस्पर्सिंग ऑफ सीड्स, आपका आंसर पार्शियली करेक्ट है, बट बर्ड्स आर नॉट डिवाइसेड, दे आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ओके, सो सीड्स एंड फ्रूट्स का जो स्पेशल डिवाइसेस डेवलप हो रहा है फॉर देयर डिस्पर्सल एंड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। तो स्पीशीज आपका कैसा हो रहा है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग एरिया में, बिकॉज पॉलिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द डिवाइस जिसके वजह से क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है ना आपका एक जो pollen Yes. grain है from one plant to another plant, so it can be sometimes in kilometers, याद है in case of bat, right? Yes. So that's why यहाँ पे कैसा हो रहा है आपका species जो है वो it is distributing from one place to the next place. So next point लिखो, seeds and fruits develop special devices. Seeds and fruits develop special devices for dispersal and for their dispersal and distribution of species. Dispersal and distribution of species. So special device यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, क्यों हो रहा है? For dispersal and distribution of species. डन बच्चा लोग? हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now give next heading of dormancy. सुनो इसके पहले कभी dormancy? Any idea about this word? डॉर्मेंसी जनरली क्या होता है बच्चा, इट इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट। मतलब क्या, डॉर्मेंसी ना जनरली आप लोगों के सीड्स का होता है। किसका होता है? सीड्स का। तो जब सीड्स को, अभी हमको ये पता है कि हम सीड्स को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो गया, क्या करेगा वो, इट विल जर्मिनेट, राइट? सीड्स को आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे तो इट विल germinate, yes or no? Yes. Okay, now in state of dormancy, अगर आपका ये state dormancy में चला गया तो dormancy first of all होता क्या है, it is a metabolic arrest। ठीक है, क्या होता है ये, मेटाबॉलिक अरेस्ट। तो एक बार आपका सीड अगर डॉर्मेंसी में गया तो इट विल गो अंडर मेटाबॉलिक अरेस्ट, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो डॉर्मेंसी मतलब जहाँ पे आपका कोई भी चेंजेस होता ही नहीं है। मतलब आप बोलते हैं ना, जैसे हमको पता है ना जो बियर्स होते हैं ठंडी के सीजन में दे अंडरगो हाइबरनेशन, राइट? हाइबरनेशन पता है आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज विंटर स्लीप। पता है या नहीं? हाइबरनेशन, दैट इज विंटर Yes, स्लीप। ma'am. पता है. बियर्स जाते हैं, ओके। तो डॉर्मेंसी में क्या होता है, सीड्स आर आल्सो अंडरगो स्लीप, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक अरेस्ट। जहां पे आप अगर फेवरेबल कंडीशन भी प्रोवाइड करोगे सो दे आर नॉट गोइंग टू जर्मिनेट, दैट सीड्स आर कॉल्ड एज डॉर्मेंट सीड्स। तो अगर आप डॉर्मेंट सीड्स को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे दे विल नॉट जर्मिनेट। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो दिस इज योर नॉर्मल सीड जिसको आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी जर्मिनेट। दिस इज योर डॉर्मेंट सीड्स, फेवरेबल कंडीशन में भी दे आर नॉट गोइंग टू जर्मिनेट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, तो पहले आप डॉर्मेंसी का हेडिंग दो, उसमें नीचे पहले लिखो जो स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ,
dormancy is a state of dormancy. It's a state of metabolic arrest. Dormancy is a state of metabolic arrest that facilitate मतलब क्या होता है, that make sure. ओके, अब डॉर्मेंसी ये क्यों होता है, हाइबरनेशन क्यों होता है, नहीं आइडिया? बियर्स जो है आपके वो ठंडी के सीजन में क्यों सो जाते हैं? बिकॉज they are unable to survive in winter condition. That's why to avoid that climate they undergo winter sleep, that is called as hibernation. समझ में आ रहा है? So basically Yes, ma'am. जो climatic changes, जो चीजें लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, दे आर ट्राइंग टू टेक इट एज अवॉइडेंस, वो उसको क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो इट इज, यू कैन जस्ट कोरिलेट विद दिस टू थिंग्स. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी सीड डॉर्मेंसी के अंदर कब जाता है? टू अवॉइड एडवर्स कंडीशन. एडवर्स कंडीशन समझते हो ना? Yes. एडवर्स कंडीशन मतलब एडवर्स क्लाइमेट, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल बोल सकते हो. क्योंकि इतना पता है ना आपको, जब आप सीड सो करते हो उसको जरूरत से ज्यादा अगर आप पानी भी प्रोवाइड करते हो तो वो सड़ जाता है, प्लांटलेट्स जो आपके होते हैं. Yes. यस और नो? Yes. ओके, सो हैवी रेनफॉल, फिर एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी में, और एक्सट्रीम हॉट, सच कंडीशंस आर कॉल्ड एज एडवर्स कंडीशन. समझ में आ रहा है? Such conditions are called as adverse conditions. Extreme cold, extreme hot, heavy rainfall. मतलब हर चीज बहुत ही ज्यादा. So to avoid such condition, the seeds undergo dormancy that facilitates the survival of seed. अब ये सारी चीजें जब सीड आपकी अवॉइड कर लेगा जो एडवर्स कंडीशन है, तो इट विल इन ए सर्वाइव स्टेट लेटर ऑन. करेक्ट? यस और नो? Yes. Yes. तो डॉर्मेंसी इज नथिंग बट द मेटाबॉलिक अरेस्ट, जो कि इतना मेक श्योर करता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने वाला सीड से, इट शुड बी इन अ सर्वाइवल स्टेट. सो जस्ट फॉर टॉलरेटिंग दिस एडवर्स कंडीशन सीड्स अंडरगो डॉर्मेंसी. क्लियर है सबको इतना? Yes. Yes, ma'am. Okay. So dormancy is a state of metabolic arrest that facilitates, facilitate नहीं समझ रहे तो you can also write that make sure the survival of, dormancy is a state of metabolic arrest that facilitates or make sure the survival of organisms, the survival of organisms during adverse environmental conditions, during adverse environmental conditions. अब एडवर्स एनवायरमेंटल में क्या आएगा आप लोग को पता है, तो अगर इफ यू वांट आप ऐसे लिख भी सकते हो कंडीशंस के इधर नीचे बाइफर्केट करके, यू कैन राइट इट एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट एंड हैवी रेनफॉल. ओके, डन बच्चा लोग? नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Dormancy is the structural and dormancy is the structural or physiological. Dormancy is the structural or physiological adaptive mechanism okay. Dormancy generally क्या है? Dormancy is the structural or physiological adaptive mechanism for survival. So ultimately what is the purpose of dormancy?
to avoid adverse condition and to be in a living state. Correct? इतना समझ में आया सबको? in short, यस मैम। अगर आप इन Yes. जनरल बोलो तो डॉर्मेंसी का पर्पस क्या है कि जो एडवर्स कंडीशन है लाइक एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, हैवी रेनफॉल, तो जस्ट इस एडवर्स कंडीशंस को अवॉइड करके लिविंग स्टेट में प्रॉपर रहना। दूसरा, अगर आप इसको टेक्निकल डेफिनेशन बोलोगे सो इट इज अ मेटाबॉलिक अरेस्ट। डॉर्मेंसी स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिक अरेस्ट, that is the dormancy structural and physiological adaptive mechanism for survival. समझ में आया सबको एकदम अच्छे से? व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्मेंसी? Yes, Yes. ma'am. ओके, नाउ अभी नीचे ये 2 पॉइंट लिख लो बच्चा लोग। ये जो हमने लिखा है ना, नॉर्मल सीड, एरो डाल के फेवरेबल कंडीशन, देन एरो डाल के जर्मिनेशन। ओके, इट शोज जर्मिनेशन, मतलब जस्ट शॉर्टकट में शॉर्ट पॉइंट्स में लिखो। देन सेकंड में लिखो जो डॉर्मेंट सीड्स है उनको आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे, देन आल्सो दे विल नॉट जर्मिनेट। समझ में आ रहा है ना सबको डिफरेंस? यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस? Done, ma'am. एवरीवन डन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अभी हम लोग बच्चा लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो कि सीड्स कैसे है ना 10-10 साल के बाद भी वो ग्रो हुए हैं और मेच्योर हुए हैं, डेवलप हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतने साल वो कहाँ थे? अंडर डॉर्मेंसी। Dormancy. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सीड्स कि वो कितने टाइम के लिए डॉर्मेंसी के अंदर जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे डॉर्मेंसी आप कंप्लीट किए वहां पे नीचे लिखो सम डू वन थिंग, डायरेक्ट ना ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो। ये हो गया सबका? रफ करो बोर्ड? यस मैम। Yes, ma'am. डन एवरीवन, राइट? ओके, सो जहां पे आप डॉर्मेंसी कंप्लीट कियो वहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखो ल्यूपिनस आर्किटस ल्यूपिनस LUPINUS ल्यूपिनस आर्टिकस ARCTICUS ल्यूपिनस आर्टिकस is one example. Lupinus arcticus is one example of dormant seed of dormant 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 seed that grown after 10,000 years. After 10,000 years, 10 साल के बाद ये ल्यूपिनस आर्किटस के जो सीड्स है वो ग्रो हुए हैं। सॉरी, 10,000 साल तक ये क्या थे? दे वर अंडर डॉर्मेंसी। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. So Lupinus arcticus is one example of dormant seeds that came to grow after 10,000 years. अंडरलाइन कर लेना इसको, लुपिटनस आर्किटस को और 10,000 years को। डन? सेकेंड पॉइंट लिखो बच्चा लोग, सेकेंड पॉइंट लिखो फिनिक्स dactylifera, Phoenix dactylifera came out of dormancy after 2,000 years. Phoenix dactylifera came out of dormancy after
2000 years. Done? Yes, ma'am. Okay. तो सबको समझ में आ गया अच्छे से डॉर्मेंसी? तो हमने डॉर्मेंसी भी देख ली और उसके एग्जांपल्स भी देख लिए. ओके, so now give next heading, apomixis. Apomixis. So generally आप लोगों का apomixis क्या होता है बच्चा लोग? It is nothing but the formation of embryo through what? Through asexual mode without the formation of gametes. अब जैसे कि asexual mode है, तो जैसे कि हमने पहले ही डिफरेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल में. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, राइट? Whereas in case of asexual reproduction, there is no gamete formation and no fertilization such type of. So apomesis is nothing but the phenomena of asexual reproduction. Getting my point? Yes, ma'am. Okay, so apomixis जहाँ पे heading लिखो नीचे definition लिखो. Apomixis is a phenomena of. Apomixis is a phenomenon of formation of embryo. Formation of embryo through asexual mode of reproduction. Through asexual mode of reproduction, where the formation of gametes and fertilization is absent. Where the formation of gametes and the fertilization absent. समझ में आया बच्चा लोग? तो एपोमिक्सिस आपका क्या है? इट इज नथिंग बट द फेनोमेना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. यहाँ पे आपका एम्ब्रियो बन रहा है बट विदाउट द फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. जनरली हमने क्या देखा है, एम्ब्रियो कैसे बनता है? आपका जो मेल एंड फीमेल गैमेट है दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, जाइगोट Yes. बनता है, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनता है, राइट? बट एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, नाइदर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स. तो यहाँ पे जाइगोट भी नहीं बन रहा, डायरेक्टली हमारा क्या बन रहा है? एम्ब्रियो विदाउट द फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स. तो समझ में आया सबको? तो सेकेंड पॉइंट लिखो, बेसिकली apomixis is a unusual sexual reproduction. Apogamy is a unusual sexual reproduction where meiosis and syngamy is absent. Where meiosis or syngamy is absent. Syngamy क्या होता है? Fertilization. Yes, fertilization of male gamete and female. So generally यहाँ पे apomixis को sexual reproduction क्यों बोला गया बच्चे लोग? Because here it is involving the formation of embryo, that is also without the formation and fertilization of gametes. Okay, तो ये ऐसा unusual type, मतलब बोलते हैं ना rare type. Okay, so basically your apomixis is nothing but the very rare type of sexual reproduction where the meiosis as well as syngamy both are absent. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जब जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, एम्ब्रियो से क्या बनता है बच्चा लोग? एम्ब्रियो गिव राइज टू ओव्यूल, ओव्यूल से आपका क्या बनता है? सीड. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में आप जैसे लिखते हो वैसे लिखो, एम्ब्रियो
देन गिव एरो ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बन रहा है आपका सीड। जस्ट ऐसे शॉर्ट में लिख के लो। डन। Yes, ma'am. ओके, नाउ इतना हो गया ना। अब बच्चा लोग, यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में डिफरेंस पता है? एनी आइडिया? गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इतना पता है? Yes. Yes. एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। Diploid. तो चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे ये आपका फनेरिया पता है सबको, ये आपका फनेरिया का प्लांट है। ओके, तो जहाँ Yes. पे आपके लीव्स, फ्लावर्स ये सब प्रेजेंट है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। समझ में आ रहा है? एंड द लोअर पार्ट जहाँ पे आपके रूट सिस्टम्स वगैरह प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। जनरल डिफरेंस समझ में आया? सो द Yes. पोर्शन above the soil is representing sporophyte and the portion below the soil is representing gametophyte. So generally gametophyte आपका कैसा है? They are in haploid state, whereas the sporophyte are in diploid state. Okay, इतना सबको समझ में आ गया अभी? तो यहाँ Yes. पे अभी जो आपका एपोमिक्सिस है ना बच्चा लोग, यहाँ पे जैसे दो टाइप है, स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है। ओके, तो व्हेन गैमेटोफाइट ऑर्गन प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। जब बिना फर्टिलाइजेशन तो दोनों में ही एब्सेंट है, राइट? यस और नो? Yes. सो व्हेन गैमेटोफाइट produces what? Embryo. That is also without, Fertilization. yes, fertilization. Such condition is called as, such condition is called as apogamy. क्या बोलते हैं इसको? Apogamy. So if Apogamy. anyone asks you what do you mean by apogamy, so it is a part of apomixis जहाँ पे without fertilization the embryo is taken place from gametophyte. So when a gametophyte produces the embryo-like structure without fertilization, it is called as apogamy. समझ में आया? Similarly, अब gametophyte के बाद में दूसरा हमने क्या देखा था? Sporophyte. Yes. So when sporophyte give rise to embryo without meiosis, such condition is called as apospory. Such condition is called as apospory. देखो कितना इजी है, अगर ये आपको याद रखना रहेगा। गैमेटोफाइट से अराइज हो रहा है तो एपोगैमी, एपो स्टैंड्स फॉर एपोमिक्सिस। समझ में आ रहा है? एपो से एपोमिक्सिस दोनों भी जगह, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ एपोमिक्सिस। यस और नो? Yes. Yes. अब जहाँ पे गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो रिजल्ट हो रहा है, इट इज एपोगैमी। जहाँ पे स्पोरोफाइट से रिजल्ट हो रहा है, इट इज एपोस्पोरी। स्पोरोफाइट, स्पोरो से स्पोरी, गैमेटोफाइट से गैमेटो से गैमी। समझ में आ रहा है सबको? इजी टू रिमेम्बर? Yes. ओके, सो सबको समझ में आया अच्छे से व्हाट डू यू मीन बाय एपोमिक्सिस? Yes, ma'am. ओके, लिख के लो फटाफट बच्चा लोग अभी। तो पहले हमने ये देखा कि एपोमिक्सिस क्या होता है। सो इट इज द फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट। सो जनरली वैसे तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इसे अनयूजुअल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, जहां पे आपका मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दो का दोनों एब्सेंट है। अब उसमें भी हमने एक एपोगैमी देखा है, पेपोस्पोरी देखा है। एपोगैमी में आपका गैमेटोफाइट रिजल्ट करता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोस्पोरी में आपका स्पोरोफाइट जो है उससे आपका एम्ब्रियो बनता है विदाउट मियोसिस।
डन दिस? Yes, हो ma'am. गया लिख के सब बच्चे लोग का? Yes, ma'am. Should I rub it the board? Yes, ma'am. Should I Yes, rub the ma'am. board? Okay. Now, अभी जो आप लोग का apomixis है बच्चा लोग, generally it is also the main category of apomixis. Okay, it is divided into 3 types. Type बोल सकते हैं आप apomixis के types. Okay, so it is divided into 3 types. So first one is recurrent apomixis, and next one is just opposite to this, non-recurrent apomixis, and the last one is adventive embryony. Okay, so recurrent apomixis, non-recurrent apomixis, and the last one is adventive embryony. So this is recurrent apomixis, non-recurrent apomixis, and the last one is adventive embryony. इतना समझ में आया? These are the main categories of what? Of apomixis. लिखे लो इतना बाइफर्केट करके. Done? No, ma'am. Okay. Done, ma'am. Everyone done? Yes, ma'am. Okay. Yes. So first of all बच्चा लोग जनरली यहाँ पे apomixis में जो हमने बेसिकली 3 कैटेगरी डिवाइड की है, that is on the basis of formation of what? Of your embryo sac. ध्यान से सुनना, this apomixis, this main 3 categories is divided on the basis of the formation of what? Embryo sac. Yes, तो ये चीज याद रखना. ओके, सो यहाँ पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में तीन के तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे. सो सबसे पहला हमारा जो है दैट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस. ओके, रिकरेंट एपोमिक्सिस में बच्चा लोग क्या होता है, आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल और फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ न्यूसिलस. ओके, तो यहाँ पे सबसे जो पहला वाला बेसिक पॉइंट है वो आप सब जगह लिखोगे कि यहाँ पे हम लोग पहले तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में लिख रहे हैं. ठीक है, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल और some other part of nucleus or some other part of nucleus. So first point रिकरेंट में अभी लिखो मत, अभी सब लोग देखो सिर्फ. ठीक है, रिकरेंट में हमने क्या लिखा, एम्ब्रियो सैक किस चीज से बन रहा है, Archisporal cell. Archisporal सेल cell. और some other part of. Nucleus. Nucleus. Okay, now in नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होगा, आपका जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम एमएमसी. एमएमसी मीन्स व्हाट बच्चा लोग, इट स्टैंड्स फॉर मेगास्पोर मदर सेल. ओके, तो एमएमसी that undergoes कौन से डिवीजन में जाएगा, ये मियोटिक डिवीजन. ओके, सो मियोटिक डिवीजन से यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, एम्ब्रियो सैक. क्लियर है, तो एक ही उसमें आपका दोनों कवर अप हो गया.
रिकरेंट में एम्ब्रियो सैक कहाँ से बन रहा है? इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द आर्किस्पोरियस सेल और सम अदर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, राइट? whereas in non recurrent apomixis embryo sac is forming from MNC, that is megaspore mother cell. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. अब वो कैसे बन रहा है वो हम देख रहे हैं कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन दैट इज फॉर्मिंग द एम्ब्रियो सैक. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप सिर्फ इतना लिखना है कि एम्ब्रियो सैक इज for the formation of embryo sac is takes place through the megaspore mother cell, full stop. फिर सेकंड में या फिर उसी में नीचे ये आप ऐसे एरो डाल के लिख देना. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. So in this type यहाँ पे embryos can be developed from somatic nucellus or the integument. difference पता है ना सबको इंटीगुमेंट्स और न्यूसेलस में? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में लिखो embryo sac is developed from somatic nucellus और और बीच में जरूर लिखना, ओके, बिफोर राइटिंग द सेकेंड पॉइंट. So embryo sac is developing from the somatic nucellus or the integuments along the normal zygotic embryo. मतलब आपका जो नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो बन रहा है उसके साथ ही साथ इंटीगुमेंट्स भी कवर अप हो रहा है. तो सबसे पहला जो बेसिक जनरल डिफरेंस है तीनों के भी बीच में वो समझा सबको कि आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस चीज से हो रहा है. तो रिकरेंट में इट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल और सम अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस. नॉन रिकरेंट में द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज टेक फ्रॉम MMC, that is MMC. megaspore mother cell. एडवेंटिव में इट इज फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस और द इंटीगुमेंट. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. चलो फटाफट फर्स्ट पॉइंट लिख के लो तीन के तीनों का. ये और है, ओके, बिफोर राइटिंग द नंबर्स 1 and 2 बीच में और मेंशन कर लेना. रिकरेंट में एम्ब्रियो सैक इज फॉर्मिंग फ्रॉम द आर्किस्पोरियल सेल और सम अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस. डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दिस और. डन बच्चा लोग? No, ma'am. ओके, राइट इट. No, ma'am. Done, ma'am. एवरीवन डन? Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके, तो रिकरेंट में आ जाओ बच्चा लोग. रिकरेंट एपोमिक्सिस में जैसे कि हम लोग ने देखा फर्स्ट पॉइंट, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म फ्रॉम द आर्किस्पोरियस सेल और सम अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस एक्सेप्ट. यहाँ पे एक एक्सेप्शंस होते हैं ना, तो यहाँ पे हमने लिखा, इसके नीचे लिखो एक्सेप्ट तारासक्तम, एक्सेप्ट ताराजाकम
except tarazacum, TARAXACUM, where the MMC produce embryo sac, where the MMC, that is megaspore mother cell, produces embryo sac. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, Okay. Now in non-recurrent मैम वो पॉइंट आप में रिपीट कर सकते already हो? we, sorry, वही वो लास्ट वाला पॉइंट, मुझे कॉल आया था तो मैं सुना नहीं वो पॉइंट. okay. So recurrent apomixis में we have done that embryo sac is formed from the archosporial cell or some other part of nucleus. इतना तक लिखे. इसके नीचे exceptions होते हैं ना, that is except tarazacum in which the embryo sac formation is take place, except tarazacum in which the embryo sac formation take place from MMC, that is megaspore mother cell, from MMC, that is megaspore mother cell. Done? Yes, ma'am. Okay. सबका हो गया? Yes, ma'am. Now in non-recurrent apomixis में, here we have already done with the 2 points. First, the embryo sac is forming from the megaspore mother cell. Second में उसके नीचे just arrow डाल के आपने लिखा कि MMC undergo which type of division? Meiotic division to give rise to embryo sac. Done. अब वहां पे next point लिखो non-recurrent में. Here the embryo arises. Here the embryo arises from the parthenogenesis or parthenogenesis or apogamy So here the embryo arises or formation take place through parthenogenesis or apogamy. Done this? हो गया बच्चा लोग? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next point non-recurrent में लिखो. Next point in non-recurrent. Okay, सबका भी 2-2 point ही हुआ है ना? Yes, Yes. Do one thing, come to adventive embryony. Okay, 2-2 point, एक point cover करते जाएंगे. Adventive embryony में भी जैसे कि we have done, the embryo sac development is takes place through the somatic nucellus or integuments. Okay. आगे आपने लिखा था इंटीग्यूमेंट्स के बाद along with normal zygotic embryo. yes, ma'am. आपका जो नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है उसके साथ ही वहां पे इंटीग्यूमेंट्स भी वो कवर अप करके ले रहा है. ओके. सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चा लोग. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी give rise to polyembryony. Give rise to poly polyembryony. Poly stands for what? More than one, many, right? Embryony stands for embryo. So polyembryony is the condition जहां पे आपका more than one embryo present है. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes. Done this? Now वापस अभी आ जाओ आप लोग recurrent apomixis में. Last point. In apospory, the nuclear cells in apospory,
द न्यूसिलर सेल्स मतलब क्या, जो सेल्स आपके न्यूसिलस के हैं, ओके, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूसिलर सेल्स गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज मतलब ऐसे एम्ब्रियोज जो कि एपोस्पोरी से फॉर्म हो रहे हैं, जहां पे न्यूसिलस सेल्स इन्वॉल्व है। सच एम्ब्रियोज आर कॉल्ड एज डैश एम्ब्रियोज। कौन से एम्ब्रियोज? एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes. ओके, सो रिकरेंट में लास्ट पॉइंट, इन एपोस्पोरी the nuclear cell give rise to, in apospory the nuclear cells give rise to embryo sac, give rise to embryo sac which is called as apomictic embryo sac, which is called as apomictic embryo sac, APOMICTIC, apomictic embryo sac। अंडरलाइन कर लो उसको, apomictic को। डन। यस मैम। ना अभी नॉन रिकरेंट में लास्ट पॉइंट लिखो बच्चा लोग। जनरली जो आपका नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है ना, इसमें से जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, दे आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब समझते हो, अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, सो स्टेराइल मीन्स अनेबल टू रिप्रोड्यूस फ्रॉम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो नॉन रिकरेंट में लास्ट पॉइंट लिखो, द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम the plants produced from this method are sterile, are sterile, sterile मतलब unable to reproduce, are sterile and unable to reproduce sexually, and unable to reproduce sexually. Example is निकोटानिया। निकोटानिया किसका, कौन से प्लांट का नाम है पता आप लोग? निकोटिन पता है? टोबैको वगैरह में प्रेजेंट होता है ना? Yes. Yes. सो यस, तो निकोटानिया उसी प्लांट का नाम है। सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर स्टेराइल। एग्जांपल इज निकोटानिया। निकोटानिया, NICO, निको, निकोटियाना, TIANA, NICO, निको, TIANA, निकोटियाना। डन। Yes, ma'am. ओके, लास्ट में भी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का भी एग्जांपल्स लिख लो। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी is commonly found in mango, orange, lemon, etc. Mango, orange, lemon, etc. Done? Yes, ma'am. ओके, सो सबको अच्छे से समझ में आया एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस में पहले हमने एपोगैमी, एपोस्पोरी देखा। एपोस्पोरी में स्पोरोफाइट के हेल्प से एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है, और एपोगैमी में गैमेटोफाइट के हेल्प से। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक कि किस चीज से फॉर्म हो रहा है, एपोमिक्सिस इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। So recurrent में we have seen that embryo sac is formed from the archisporial cell or some other part of nucellus, whereas in non-recurrent it is formed with the help of MMC, that is megaspore mother cell. In adventive embryony we have seen that embryo sac formation is take place with the help of somatic nucellus or the integument along with the normal zygotic embryo. Done? यस Okay, मैम। so now give next heading, that is parthenocarpy.
Next topic is parthenocarpy. Parthenocarpy. We have already done deal with the parthenogenesis, right? जहां पे हमने पार्थिनोकार्पी का भी डेफिनेशन आप लोगों से रिकलेक्ट कराया था मैंने. आई होप याद होगा आप लोगों को. Parthenogenesis means the formation of embryo without fertilization, and parthenocarpy means what? The formation of fruit without fertilization. Difference clear है ना सबको? Yes, जेनेसिस ma'am. एंड कार्पिनो के बीच में, कार्पी में. ओके. Yes. तो Yes, ma'am. पार्थिनोकार्पी का जहां पे हेडिंग दी है उसके नीचे भी पॉइंट वाइज लिखना चालू करो. फर्स्ट पॉइंट, द पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस, द पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस, the formation of fruit, the formation of fruit without fertilization. The parthenocarpy is the process, the formation of fruit without fertilization. Done. Second point लिखो. The second point लिखो. The term parthenocarpy is coined by, the term parthenocarpy is coined by, COINED, coined by मतलब named by, दिया किसने ये नाम? Knoll, NOLL, Knoll, in the year of 1902, coined by Knoll in the year of 1902. Clear है? So first of all, what do you mean by parthenocarpy? It is the process of formation of fruit without fertilization, and the term of parthenocarpy is coined by Knoll in 1902. Clear है इतना सबको? Yes, ma'am. Okay, next point लिखो. It occurs in, sorry ऐसा मत लिखो सर. Next point लिखो. Parthenocarpy occurs naturally in, मतलब अपने आप नेचुरली बहुत सारे वेराइटीज में होता है. पार्थिनोकार्पी occurs naturally in बनाना, पाइनएप्पल, पपाया. बनाना का हमने पहले से एग्जांपल पढ़ा हुआ है. सो बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, etc. So naturally parthenocarpy, it takes place in banana, pineapple, papaya, etc. Done. Yes, ma'am. Okay, next point लिखो. The fruit developed from parthenocarpy
Am I audible to everyone? Yes. Yes. Okay. कहाँ पे थे हम लोग? The parthenocarpic fruits are सीडलेस फ्रूट्स। तो नेचुरली जितने भी फ्रूट्स में आपका पार्थिनोकार्पी हो रहा है ना बच्चा लोग, ऐसे फ्रूट्स कैसे होते हैं? जनरली दे आर सीडलेस फ्रूट। समझ में आ रहा? अंडरलाइन दिस। So naturally parthenocarpy occurs in what? Pineapple, banana, papaya, etc. आवाज आ रही है मेरी सबको? Am I audible to Yes, everyone? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So examples में हमने क्या देखा? Banana, pineapple, papaya, etc. And such fruits are seedless fruits. Done this? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now what is the reason behind this? Any idea? मतलब पार्थिनोकार्पी होता ही क्यों और कैसे होता है? मतलब अगर जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, then what is the reason behind कि आपका जो फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है? Is it strange? Without fertilization आपका फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, right? So with the help of hormone, जैसे कि हार्मोन we already know, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा लोग? In this plants आपका जो प्लासेंटल टिश्यू होता है ना, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। Yes or no? Yes. So in unfertilized ovary, आपका जो unfertilized ovary, it produces the hormone named as auxin. Which hormone? Auxin. Auxin. ऑक्सिन में भी अब बहुत सारे टाइप होते हैं बच्चा लोग। सो ऑक्सिन में भी IAA दैट स्टैंड्स फॉर इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो द अनफर्टिलाइज्ड ओवरी produces the hormone which name is auxin, that is IAA indole acetic acid 3, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसके हेल्प से आपका जो ओवरी है वो एनलार्ज हो जा रहा है, वो बड़ा हो रहा है, एंड इट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, in this plants the unfertilized ovary in this plants the unfertilized ovary in this plants the unfertilized ovary produces an hormone auxin, 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 IAA, auxin, IAA, अंडरलाइन कर लेना, ओके? ऑक्सिन को अब IAA स्टैंड्स फॉर इंडोल 3, INDOLE। केमिस्ट्री पढ़े हो ना? इंडोल रिंग पता है ना सबको? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ओके? सो इन दिस हार्मोन ऑक्सिन में आपका क्या प्रेजेंट है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। कौन रिलीज कर रहा है बच्चा लोग ये हार्मोन? Auxin. ऑक्सिन तो खुद ही हार्मोन है। ऑक्सिन इज रिलीज फ्रॉम वेयर? Placental tissue. Placental tissue. Unfertilized ovary. Got it? Your unfertilized ovary is releasing the auxin. ऑक्सिन का ही ये कंटेंट्स है, दोनों अलग नहीं है, ऑक्सिन ही। ऑक्सिन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि ये IDA, IBA भी होता है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड भी होता है। सो यहाँ पे दिस इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ऑक्सिन और IAA अलग अलग नहीं है बच्चा लोग, इट इज सेम। क्लियर है इतना? So आपका unfertilized ovary releases an hormone called auxin that is releasing indole 3 acetic acid which results into an enlargement of ovary. तो अब कहाँ तक लिखे? indole 3 acetic acid यहाँ तक लिखे? Which results, इसके आगे लिखो, which results into a enlargement of ovary, which results into a enlargement, ENLARGEMENT, enlargement of ovary into a fruit, of ovary
into a fruit. समझ में आया सबको? Yes. So parthenocarpy में first that we have discovered that is it is a process in which fruits are developed without fertilization. Such fruits are seedless. जिसमें examples भी देखा हमने कि parthenocarpy naturally form होता है जैसे कि pineapple, banana, papaya etc. अब इसमें होता क्या जनरली इसमें जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी आपका वो ऑक्सीजन रिलीज करता है जिसके हेल्प की वजह से योर ओवरी इज बिकम्स लार्ज एंड कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट. क्लियर है सबको पार्थिनोकार्पी? यस मैम. किसी को कुछ भी डाउट? Yes or no? No, ma'am. Okay, then give next heading of polyembryony. That is the last topic of this chapter. Polyembryony. So poly stands for many, and again embryony stands for embryo. So polyembryony में क्या होगा? Multiple embryos होंगे. Okay. Done? Heading. Okay. So write the first point. Polyembryony. First point लिखो बच्चा लोग. Polyembryony is the development of more than one embryos inside the seed. Full stop. More than one embryos inside the seed. Done? Yes. Okay. Second point देखो. It was first observed by. Second point. ये polyembryony जो है polyembryony was first observed by. ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. It was first observed by Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. It was first observed by Leeuwenhoek in the year 1719. In the year 1719, in which seeds in the seeds of citrus, या फिर in citrus seeds, in citrus seeds. Done? Yes, ma'am. अब Yes. पॉलीएम्ब्रियोनी से बच्चा लोग क्या होता है अल्टीमेटली यहाँ पे होता है ना इट इज द ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो जिसके वजह से मल्टीपल सीड्स होता है. समझ में? अब यहाँ पे सिट्रस फ्रूट सुने हो? सिट्रस फ्रूट्स पता है आपको? लेमन, टोमेटो आर द एग्जांपल ऑफ सिट्रस फ्रूट्स. तो वहां पे आपने देखा लेमन में कितने सीड्स होते हैं? मोर देन वन सीड्स. टोमेटो में भी यू हैव आल्सो मोर देन वन सीड्स, राइट? यस. So these are the basic example that is citrus seeds. Citrus fruits के जो seeds होते हैं they are called as citrus seeds. जैसे कि आप एग्जांपल देख भी सकते हो कि लेमन टोमेटो में आपने ऑब्जर्व किया होगा मोर देन वन सीड्स प्रेजेंट होते हैं. सो पॉलीएम्ब्रियोनी आर नथिंग बट द मल्टीपल एम्ब्रियो जिसको फर्स्ट टाइम किसने नोटिस किया था? ल्यूवेनहोक ने किया था इन द ईयर ऑफ 1719 इन द सिट्रस फ्रूट्स के सीड्स में. ओके, एग्जांपल इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज लेमन एंड टोमेटो. ओके, सो डन दिस. So next point लिखो polyembryony results into a multiple seedlings. Multiple seedlings या फिर multiple seeds. Example lemon, tomato, etc. Polyembryony results into a multiple seeds. Example is lemon, tomato, etc. Done? मैम ब्लैक स्क्रीन दिख रही है. Screen is not visible. स्क्रीन ब्लैक हो गई. Okay. अभी दिख रहा है? नो मैम. ब्लैक ही है स्क्रीन. Now is it visible? नो. No, ma'am. मैम. यस अभी दिख रहा है. मैम
So polyembryony results into multiple seeds. Example is lemon, tomato, etc. इतना लिखा सबने? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. ma'am. Okay. Next point लिखो. अब जो यहाँ पे एडिशनल इम्ब्रियोज होते हैं ना बच्चा लोग, ये कैसे बनते हैं? सो दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैटरनल एंड जाइगोटिक टिश्यू. क्योंकि जैसे कि हमको पता है एग वगैरह तो लिमिटेड ही प्रेजेंट होता है, राइट? एक ही प्रेजेंट होगा, यस और नो? तभी तो Yes. सिंगेमी होती है ना. तो यहाँ पे मल्टीपल इम्ब्रियोज आखिर कैसे फॉर्म हो रहे हैं? सो इट इज बिकॉज ऑफ द जाइगोटिक टिश्यू एंड मैटरनल. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग. The polyembryony, हाँ ऐसे लिखो. In polyembryony, the additional embryos, in polyembryony, the additional embryos is formed from various maternal, maternal, maternal मतलब होता है फीमेल के पार्ट से, ओके? Maternal, formed from maternal and zygotic tissue and zygotic tissue from maternal and zygotic tissue associated with ovule of seed. Done? Yes, ma'am. Okay. Next Yes, ma'am. point. Polyembryony. Next point. As we call polyembryony is of two types: true polyembryony and false polyembryony. Okay. So polyembryony ऐसे bifurcate करके लिख दो, true और false. Depending on, ये लिखे ना, polyembryony is divided into true polyembryony और false polyembryony. इसके आगे लिखो depending on, मतलब ये किसके बेसिस पे आप डिवाइड करते हो कि ये ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है, ओके? डिपेंडिंग अपॉन दैट मेनी embryos, depending upon that many embryos produced in same embryo sac or different embryo sac, produced in same embryo sac or different embryo sacs in the same ovule, in the same ovule. Done? समझ में आया? So polyembryony is generally divided into two: true polyembryony and false polyembryony. True polyembryony में क्या होगा बच्चा लोग? All the embryos are developed from the same embryo sac in the same ovule. Okay? False polyembryony में क्या आएगा? The additional embryos are developed from the different embryo sac. Clear है इतना सबको? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. The additional embryo. Okay. Now कौन सा वाला बोल रहे हो? आपने वहाँ The the additional embryos. हाँ हाँ हाँ, पॉलीएम्ब्रियोनी आपने यहाँ पे लिखा ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी. yes. सो ये डिपेंड किस बेसिस पे करता है? जो आपके एडिशनल एम्ब्रियोज है ना, मेनी मतलब जितने भी एम्ब्रियोज हो ना यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट द एडिशनल एम्ब्रियोज. सो जो मेनी एम्ब्रियोज अराइजेस इन द सेम एम्ब्रियो सैक मतलब ट्रू, और डिफरेंट एम्ब्रियो सैक मतलब फॉल्स. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. ओके. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चा लोग. Polyembryony increases
the chances of polyembryony increases the chances of survival of new plants. Polyembryony increases the chances of survival of new plants. Done? Yes. Okay. Now, अभी next point में polyembryony लिखो and bifurcate कर दो उसे two part में. That polyembryony is divided into two types. एक है आपका adventive polyembryony and the another one is cleavage polyembryony. Just हमको difference देखना है कि किसमें कैसा होता है. Okay, फटाफट. Polyembryony is divided into two: adventive polyembryony and cleavage polyembryony. Done? उसी में आगे पॉइंट्स में लिखना. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में पॉलीएम्ब्रियोनी डिवाइड इनटू टू एडवेंटिव एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. हो गया बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ पे अटेंशन. एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है बच्चा लोग? यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दिस एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट्स. ठीक है, embryo is developed from nucleus that is diploid. Okay, समझ में आ रहा है ना? Embryo is developed directly from the diploid cell of nucleus and integuments Done? तो आप चाहो तो इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हो. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में नीचे लिखो embryo is developed directly from the diploid cell of nucleus and integuments. Embryo is developed directly from the diploid cell of nucleus and integuments. Done? Example लिख लो citrus. Example is citrus. Done? Yes. So एडवेंटिव में क्या हो रहा है? इट इज डेवलप. आपका जो एम्ब्रियो डायरेक्टली किस चीज से डेवलप हो रहा है? डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इंटीग्यूमेंट्स. ओके, नाउ इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होगा? आपका जो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो है, इट क्लीवेज का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? डिवाइड. ओके, क्लीवेज स्टैंड फॉर डिवाइड. क्लीवेज मतलब होता है क्लीव मतलब होता है कट होके दो पार्ट में डिवाइड होना. ओके, तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में आपका जो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो sometimes it divides into a many parts or unit, each unit that develops into an embryo. फर्क समझ में आ रहा है? एडवेंटिव में क्या हो रहा है? एम्ब्रियो डायरेक्टली इज फॉर्मिंग फ्रॉम द डिप्लॉयड न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट. क्लीवेज में क्या होगा? जाइगोट प्रो एम्ब्रियो. क्या होगा आपका जो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो है, मतलब एम्ब्रियो से पहले वाला स्टेज, दैट इज जाइगोट प्रो एम्ब्रियो. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is cleaves, मतलब कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है into a many units. Okay, zygote pro embryo cleaves into many units. Many units मतलब many parts. जो एक ही आपका zygote pro embryo वो डिवाइड होके क्लीव होके किसमें? many unit और many parts में कन्वर्ट हो रहा है, और आगे जाके यही many units और many parts किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चा लोग? अलग अलग एम्ब्रियो. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, आपका जो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो है, इट क्लीव्स इनटू अ 10 पार्ट्स और 10 यूनिट्स. ओके, सो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम दिस 10 पार्ट्स इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ 10 न्यू एम्ब्रियोज. करेक्ट? Yes. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो लिख लो यहाँ पे इन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जाइगोट प्रो एम्ब्रियो डिवाइड्स और क्लीव्स इनटू मेनी पार्ट्स और यूनिट. यहाँ तक लिखे हैं आप सब? Yes. नेक्स्ट लिखो लेटर दिस यूनिट
later this unit develop into a develops into an embryo. Develops into an embryo. Done, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so here we are done with this chapter. I hope everything is clear to everyone. So polyembryony सबको अच्छे से